نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ندعو ابناءنا وابناءكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ محتشم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حسن مجتبی جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جو صبت رسول ہیں، جنہیں میرے آقا علیہ السلام اپنا بیٹا کہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی پھول ہیں، جنہیں میرے مصطفیٰ چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں، جنہیں آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جنہیں اپنی گود میں کھلاتے ہیں، جن کے لیے آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے لیے سجدہ دراز کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی جو شبیہ ہیں وہ حسن مجتبی جو سر سے لے کر ناف تک شبیہ رسول ہیں، آقا علیہ السلام کی تصویر ہیں، سر سے لے کر ناف تک امام حسن مجتبی شبیہ رسول ہیں، اور پیٹ سے لے کر پاؤں تک آپ کے برادر اصغر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شبیہ رسول ہیں، اور دونوں شہزادوں کو اگر اکٹھا کھڑا کیا جائے تو تصویر محمد بنتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جب کبھی یاد ستاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہجر اور فراق کا درد جاگ جاتا تھا، جب انہیں دیدار مصطفیٰ کی کیفیات اور لذات یاد آتی تھیں، تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر کے وہ دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے جو ہیں وہ سید ہیں، سردار ہیں، لیکن امام حسن مجتبی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اسپیشلی یہ فرمایا، بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث فرمایا، ان ابنی ھذا سید، سردار کہا۔ اور میں یہ حدیث شریف، یہ روایت پوری کرنے سے پہلے اور اس بات کی طرف آنے سے پہلے اپنی ناظرین کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیا راز پنہا تھا، کیا پیغام تھا کہ اوپر کا جو حصہ ہے جسم کا، اس کی شباہت امام حسن مجتبی کو ملی، اور جو جسم کا نیچے کا حصہ تھا اس کی شباہت امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو اس شاکان مصطفیٰ نے، شارحین حدیث نے، ائمہ اور متکلمین نے اس پر کلام کیا اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کا اوپر کا حصہ ہے اس میں سر ہوتا ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہے اس میں پاؤں ہوتے ہیں۔ سر پر دستار ہوتی ہے جو سرداری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور نیچے پاؤں ہوتے ہیں
और पांव पर बवक्त जरूरत डट के खड़ा होना होता है, इस्तिकामत का मुजाहरा करना होता है। इमाम हसन मुज्तबा को ऊपर के हिस्से की मुशाहबत इसीलिए अता हुई कि आपने सरदार होने का हक यूं अदा किया, सरदारी की लाज यूं निभाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वस्फ में जानशी होने का और मजहर होने का आपने सबूत यूं फराहम किया है कि आपने उम्मत की सुलह की खातिर और उम्मत को अमन अता करने के लिए, उम्मत को कत्ल गारत गरी से बचाने के लिए, कुश्त खून से बचाने के लिए आपने इक्तदार भी दे दिया, आपने हुकूमत को भी ठुकरा दिया, आपने कुर्सी को भी छोड़ दिया है। यह है सरदारी का हक जो आपने अदा किया है। और नीचे की मुशाहबत इमाम आली मकाम को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को मिली, उसकी वजह ये कि करबल के तपते हुए सहरा पर दीन इस्लाम को, नाना के दीन को बचाने के लिए आपने सब कुछ कुर्बान करके भी इस्तिकामत का ऐसा मुजाहरा किया है जिसकी नजीर रहती दुनिया तक कोई पेश नहीं की जा सकती है। किसी ने कहा था कि शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीन करबो बला इस शान का सजदा खेल नहीं। हमारा मौजूए सुखन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, तो आपने सरदारी यूं निभाई है कि इक्तदार तक भी आपने कुर्बान कर दिया है। यही वजह है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपको अपने मिंबर पर अपनी दाएं जानिब बिठा के इशारा करके फरमाया, इन नबनी हाजा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है। हालांकि दोनों शहजादे सरदार हैं, दोनों सय्यद हैं, दोनों की औलाद भी सय्यद है। कोई हसनी सय्यद है, कोई हुसैनी सय्यद है, कोई नजीबुत तरफैन है जो दोनों की औलाद में से है, यानी बाप की तरफ से अगर वो हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, या बाप की तरफ से हुसैनी है, माँ की तरफ से हसनी है, वो नजीबुत तरफैन है। दोनों सय्यद हैं, दोनों को सय्यदा शबाब अहलल जन्ना कहा गया, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और ये हदीस शरीफ भी आपके ईमान को ताजा करने के लिए सुना देता हूं। मिशकातुल मसाबिह के अंदर यह हदीस शरीफ दर्ज है। हजरत हुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब सिर हैं, जिनको ये इम्तियाजी वस्फ नसीब हुआ कि वो राजदार ठहरे, उनके पास राज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा था जो बाकियों के पास न था। वो हजरत हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए थे हाजिरी देने के लिए, अपनी वालिदा से इजाजत मांग के आए थे। मदीना से बाहर रहते थे, वहां से हाजिरी देने के लिए आए तो माँ से इजाजत मांगी। इसमें माँ का मकाम भी बयान किया गया, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं और आपके लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवा के आऊं। माँ ने इजाजत दे दी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में मगरिब की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद ख्याल था कि मैं अपनी अर्ज पेश करूंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल रहे इबादत में, अव्वाबीन पढ़े आपने, जिक्र फिक्र में मशगूल रहे, आपने मुसल्ला नहीं छोड़ा, अपनी जगह पर रहे। मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में, अंधेरी मस्जिद नबवी शरीफ, उस वक्त इतनी लाइट्स का इंतजाम नहीं होता था, इतनी रोशनियां नहीं होती, तो आप बैठे रहे, अपने तौर पर इंतजार में रहे। ता वक्ते के इशा की नमाज का टाइम आ गया तो आपने सोचा कि चलें, ये दोहरा एजाज है कि अब इशा की नमाज भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में पढ़ता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में इशा की नमाज अदा की। जब नमाज से फारिग हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हुजैफा एक साइड पे रहे। ख्याल ये था कि मुझे अलग से मौका मिलेगा तो मैं दस्त बोसी के बाद अपनी अर्ज पेश करूंगा आका की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक सहाबा से मिलते गए,
मुसाफहा करते गए, हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ से निकल गए और फिर आपने हुजरों की तरफ आना था, उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात की तरफ। हजरत हुजैफा पीछे पीछे हो लिए कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे जा रहे हैं, हजरत हुजैफा पीछे पीछे हैं। रात के अंधेरे में कदमों की जब आहट सुनी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे देखे बगैर, मुड़े बगैर फरमाया, मन हाजा, कौन है? हजरत हुजैफा भी बोले नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी गैबदान ने खुद फरमाया, हुजैफा तो हुजैफा हो? अर्ज किया, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मैं हुजैफा हूं। अब सरकार जो मुड़े, हजरत हुजैफा करीब आए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुजैफा के बोले बगैर, कुछ अर्ज किए बगैर, हजरत हुजैफा से पूछे बगैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, गफरल्लाहु लका वली उम्मिका मा हाजतुक, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी मां की भी बख्शिश फरमाए, बता किस लिए आया है? हजरत हुजैफा ने अर्ज किया, अर्ज आका अब क्या बताऊं कि मैं किस लिए आया हूं? बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया ही नहीं। आका जो कुछ मैं दिल में सोच के आया था, जो ख्वाहिश रख के आया था, घर से जो आरजू लेके आया था, जो तमन्ना लेके आया था, अपनी मां से इजाजत जिस पर्पस के लिए लेके आया था, मेरे आका वो तो आपने बगैर पूछे ही अता कर दिया है। इसलिए तो फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब हजरत हुजैफा ने कहा, या रसूलल्लाह अब इजाजत दीजिए, मेरी हाजत तो आपने पूरी कर दी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब सुनो हुजैफा, वो तुम लेने के लिए आए थे, मैं तुम्हें उस पर एक इजाफी चीज अता करना चाहता हूं। हदीस के अल्फाज ये, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन हाजा मलकुन लम यंजिल अल अर्द कत्तु क़ब्लहु इस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फातिमाता सय्यदातु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया हुजैफा ये एक फरिश्ता है। फरमाया ये फरिश्ता है। सरकार ने कहा ये फरिश्ता है, इशारा करके कहा। हाजा जो है इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर महसूस मुबसर के लिए होता है, जो महसूस हो और जो दिखाई दे रहा हो। अब सरकार को दिखाई दे रहा था, हजरत हुजैफा को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये अर्ज नहीं किया कि आका मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो फरिश्ता हाजिर है। हमारी निगाहें वहां तक नहीं देख सकती जहां तक आमिना के लाल की निगाह देख सकती है, देखती है। फरमाया ये फरिश्ता है और आज से पहले जमीन पर कभी नहीं आया। आज इसने अपने रब से स्पेशली इजाजत मांगी, अप्लाई किया, खुद जाके अर्ज की, या अल्लाह आज मैं जाना चाहता हूं तेरे महबूब की बारगाह में। पहले जिब्रील पैगाम लेके जाते हैं, लेकिन आज जो तू पैगाम दे के भेजना चाह रहा है वो मैं लेके जाना चाहता हूं। अब नाज़रीन किराम, वो आज फरिश्ते ने खुद जो कहा, या अल्लाह मैं जाना चाहता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर पूछा होगा कि तू क्यों जाना चाहता है? तो यही अर्ज किया होगा, मेरा विजदान कहता है कि या अल्लाह जो तू खबर भेज रहा है इसको सुन के तेरा महबूब खुश होगा, और मैं चाहता हूं ये खबर मैं पेश करूं। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह का प्यारा महबूब, मदीने का ताजदार, शब असरा का दूल्हा, आमिना का लाल, हसनैन करीमैन का नाना, सय्यदा कायनात का बाबा, जब खुश हो तो वो करम की नजर मेरे ऊपर डाल दे तो मेरी भी बिगड़ी बन जाए। अब वो खबर क्या लेके आए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा मलकुन, ये फरिश्ता इससे पहले जमीन पर कभी नहीं आया। इस्ताज़ना रब्बहु, इसने रब से इजाजत मांगी, क्या? अय्युसल्लिम अलैया, कि आज मेरी बारगाह में सलाम पेश करना चाहता है। व युबश्शिरनी,
اور یہ مجھے بشارت دینا چاہتا ہے، خبر دینا چاہتا ہے، خوشخبری سنانا چاہتا ہے بِأَنَّ فاطمہ دا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ کائنات کو، سیدہ فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین کو، حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ کو میرے آقا نے خود سنایا، خود بتایا۔ حضرت حذیفہ یقیناً سبحان اللہ کہتے ہوئے، واہ واہ کرتے ہوئے وہاں سے اجازت لے کے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں شہزادے سردار ہیں، بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شباب اہل الجنہ، لیکن پھر اس میں سے سپیشلی میرے آقا نے امام حسن مجتبی کو اپنے دائیں طرف بٹھا کے اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ذرا سوچئے، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید دو عالم، جس شہزادے کو کہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی سیادت اور سرداری کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سید، اس سردار کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ امام حسن مجتبی سبب بنے، آپ نے اقتدار کی قربانی دی، حکومت کو چھوڑ دیا، کرسی کو چھوڑ دیا، اور امت کے دو گروہوں کے اندر صلح کروا دی۔ امام حسن مجتبی کی عظمت اور یہ سرداری ہے، یہ سیادت ہے، یہ سخاوت ہے، یعنی آپ کی سخاوت مشہور تھی، آپ کا زہد و تقوی مشہور تھا، آپ کی شب بیداری، عبادت، ریاضت مشہور تھی، آپ کی محبت خدا اور محبت مصطفیٰ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سواریاں ہونے کے باوجود آپ پیادہ حج کیا کرتے تھے، درجنوں حج آپ نے پیدل کیے، اور فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں۔ اب یہ آپ کی سخاوت مشہور تھی، اور اس سخاوت اور سیادت کا کلائمیکس یہ ہے کہ آپ نے اقتدار بھی قربان کر دیا ہے۔ سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی لیے تو سیلوٹ کرتے ہوئے کہا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اقتدار بھی قربان کر دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کی شان اور عظمت خود بیان کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے خود بیان کیا کرتے تھے، اپنی امت کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام حسن مجتبی کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، امام حسن مجتبی کو، اور جب شہزادے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، چاہے امام حسن پاک ہوں یا امام حسین پاک ہوں، تو ذرا سوچئے تو صحیح، ان کے ہاتھ کہاں ہوتے ہوں گے اور ان کے قدم کہاں ہوتے ہوں گے۔ علم نشرح کے سینے کے ساتھ ان کے قدم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک یا ریش مبارک پہ ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں شہزادے انگلیاں پھیرتے تھے، اور آقا علیہ السلام مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ امام حسن مجتبی تو وہ ہیں جن کی ولادت کے وقت میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لا کے نام بھی خود رکھا ہے، گھٹی بھی خود عطا فرمائی ہے، اور حسن نام رکھا جو آسمانوں سے آیا، جو اللہ نے جبریل کے ذریعے بھجوایا، میرے آقا نے وہ نام رکھا، اور تاریخ آدمیت میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے اور اس شہزادے کا نام تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم، مراد رسول، شوکت اسلام، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
تو वाह वाह करने लगे, आश कर उठे। देखिए ना, फारूक आजम वही हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर खुम पे मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो का ऐलान करते हैं तो सबसे पहले मुबारकबाद भी फारूक आजम पेश करते हैं, सबसे पहले मुबारकबाद फारूक आजम पेश करते हैं। और शहजादे को कंधे पे देखा तो सबसे पहले वो मुबारकबाद का और खुशी का जुमला हजरत फारूक आजम ने कहा। क्या कहा? नेमल मरकब या गुलाम, ऐ बच्चे, ऐ लड़के, ऐ शहजादे, क्या सवारी तुझे मिली है, ऐसी सवारी तो आज तक शायद ही किसी को नसीब हुई हो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व नेमर राकिब हुआ। उमर, ये भी तो देखो, अगर ऐसी सवारी कोई नहीं है तो इस जैसा सवार भी तो कोई नहीं है, इस जैसा सवार भी तो कोई नहीं है। मुझे एक बात याद आ गई, वो जुमला मोतरजा के तौर पर अर्ज कर देता हूं कि मौला कायनात को फारूक आजम ने ये मुबारकबाद दी कि आप मौला हैं, आका ने आपको मौला बना दिया, मेरा भी और हर कलमा गो का मौला बना दिया। और मौला कायनात फारूक आजम की अजमत यूं बयान करते हैं, सही बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफर नंबर 520 है। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए फारूक आजम से कितना प्यार करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ, जब आपकी रूह जसद उनसरी से परवाज कर गई, जब आपको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, आपका जसद अथर पड़ा हुआ था, अभी तदफीन नहीं हुई थी, उस वक्त चाहने वालों का हुजूम था, सहाबा और ताबईन थे, तो वो सारे दुआएं मांग रहे थे, उनसे अपनी न्याजबंदी का इजहार कर रहे थे। तो उस हुजूम में एक शख्स आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने मुड़ के देखा तो वो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। तो पता है मौला कायनात ने क्या कहा नाजरीन, दिल थाम के सुनने वाला जुमला है, सही बुखारी है। हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत फारूक आजम को मुखातब करके उनकी तरफ तवज्जो करके कहा कि मा खल्लफ्ता अहदन अहब्बा इलैया अन अलकल्लाह बिमिस्ल अमलिही मिनका। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन अल खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल, आपके बाद अब क़यामत तक कोई और ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में मेरी ख्वाहिश तमन्ना आरजू हो, मेरी चाहत हो कि मैं उस जैसे अमल लेकर रब की बारगाह में पेश हूं, उस जैसे अमल लेकर रब की बारगाह में पेश हो। ये है उनकी आपस में मोहब्बत। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नेमल मरकब या गुलाम, तो मेरे नबी ने फरमाया व नेमल राकिब हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने ये बयान करते थे, सहाबा उस पर अमल करके दिखाते थे। अगली रिवायत जो बयान करने लगा हूं बहुत ईमान अफरोज है, बहुत ही मोहब्बत भरी ये बात है। एक दिन असर की नमाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाई और दोनों शहजादों को जो बचपन की उम्र में थे, अभी नन्ही उम्रें थी उनकी, कंधों पे उठा लिया दोनों शहजादों को और कंधों पे उठा के सहाबा इकराम को मुखातब करके कहा जानते हो ये कौन है? अल्लाह अकबर। हालांकि सहाबा जानते थे लेकिन इसके बावजूद बोले नहीं, या रसूल अल्लाह आप बताइए, क्योंकि वो जानते थे कि आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ खास बात कहना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, वरना हसनैन करीमैन को कौन नहीं जानता, नबी के शहजादों को कौन नहीं जानता, मुस्तफा के नवासों को कौन नहीं जानता, जहरा के गुलशन की कलियों को कौन नहीं जानता, मौला अली के जिगर पारों को कौन नहीं जानता। लेकिन खामोश हो गए। या रसूल आप बताइए, फरमाया ये हसन और हुसैन है, ये हसन और हुसैन है। फरमाया इनके नाना नबियों के सरदार हैं, फरमाया इनके बाबा हैदर कर्रार हैं, फरमाया इनकी अम्मा जन्नती औरतों की सरदार हैं, और फरमाया इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, फरमाया इनके चचा जाफर तैयार हैं, इनके मामू कासिम अब्दुल्ला और इब्राहिम हैं, और इनकी खालाएं उम्मे कलसूम रुकैया और जैनब हैं,
इनकी फुफ्फी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे रिश्ते गिनवा दिए, तारुफ करवाया, कंप्लीट तारुफ, हवालों से, जिहतों से, निस्बतों से तारुफ करवाया। फरमाया इन जैसी निस्बतें और इन जैसे हवाले किसी के पास हैं। ये तारुफ करवाने के बाद नाज़रीन किराम, अगली बात इससे भी बड़ी मोहब्बत भरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया सुनो, फरमाया इनके नाना भी जन्नती हैं, इनकी नानी भी जन्नती हैं, इनके बाबा भी जन्नती हैं, इनकी अम्मा भी जन्नती हैं, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, इनकी फूफियां भी जन्नती हैं, इनके मामू भी जन्नती हैं, इनके चचा भी जन्नती हैं, जिन जिन का नाम लिया था। और फरमाया वह हुमा फिल जन्ना, ये खुद भी जन्नत में हैं। फरमाया ये भी जन्नत। अब जन्नती होने का मतलब यह है कि ये सारे नुफूसे कुदसिया जन्नत के मालिक हैं। और इस रिवायत का आखिरी जुमला यह है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। अब मैं आगे चलने से पहले यहां फिर वही बात करूं कि आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन को कंधों पे उठाया हुआ है असर की नमाज के बाद। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक असर की नमाज ऐसी आई जिसमें मुसल्ला इमामत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और पीछे हजरत मौला कायनात हैं। नमाज अबू बकर ने पढ़ाई है और पीछे खड़े होकर हैदर करार ने पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद दोनों यार जो निकले तो बाहर शहजादे खेल रहे थे। इमाम हसन मुज्तबा को नबी के यारेगार, ताजदार सदाकत, वफा शियार रिसालत, मिजाज शनास नबूवत, परवाना शमे रिसालत, खलीफा अव्वल बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कंधों पे उठा लिया। और कंधों पे उठा के पता क्या कहा अल्लाह की कसम है शबीहुम बिन नबी ला बे अली। फरमाया शहजादे मुझे मेरे रब की कसम है आप तो मुस्तफा के शबी हैं, मौला अली की शबी नहीं है। आपकी मुशाबत रसूलुल्लाह से ज्यादा है, आपकी मुशाबत आमिना के लाल से ज्यादा है। ये हजरत अबू बकर फरमा रहे हैं और मौला कायनात सुन के मुस्करा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। आज जिस तरह सहाबा के सामने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के रिश्ते गिनवाए, उनकी निस्बतों को गिनवाया, उनके वो हवाले बयान किए हैं, इसी तरह एक मर्तबा दौर है फारूक आजम का, अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल 22 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा उमर है। अपने दौरे हुकूमत में, अपने दौरे खिलाफत, दौरे अमारत में वज़ाइफ मुकर्रर कर रहे हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने किबार सहाबा जो थे, अजिल्ला सहाबा जिनकी बड़ी खिदमात थी दीन के लिए, कुर्बानियां थी, जितने उनके वज़ाइफ मुकर्रर किए उनके बराबर इन 9 उमर शहजादों के मुकर्रर किए। और फिर जितने इन शहजादों के वजीफे मुकर्रर किए उससे हाफ अपने बेटे जलील कदर साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का वजीफा मुकर्रर। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया अब्बा जान मैं उमर में बड़ा हूं, मैं इस्लाम पहले लाया, मेरी सर्विसेज खिदमात हैं, शहजादे तो 9 उमर हैं। जब हम तलवार लेके मैदान जिहाद में होते थे शहजादे अभी मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना की गलियों में खेलते थे। ये सवाल इसीलिए किया था अब्दुल्ला बिन उमर ने, साहबी रसूल हैं, कि मेरे अब्बा जवाब दें और दुनिया को पता चल जाए कि उमर के नजदीक मुस्तफा के रिश्तों का कितना हया है, मुस्तफा की निस्बतों का कितना एहतराम है और हसनैन करीमैन का क्या मकाम और मर्तबा है। उमर के दिल में उनकी कितनी अजमत, कितनी शौकत,
कितनी इज्जत, कितनी हैबत और कितना जलाल है। वो उमर जिसकी हैबत और जलाल से दुनिया कांपती है। अब जब ये कहा तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया और अब्दुल्ला को, अपने बेटे साहबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को मुखातब करके कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह बजा है, तुम्हारी दलील अपनी जगह दुरुस्त है, तुमने जो आर्ग्यू किया वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा नाना इनके नाना जैसा है? क्या तुम्हारी नानी इनकी नानी जैसी है? तुम्हारे बाबा इनके बाबा जैसे हैं? क्या तुम्हारी माँ इनकी माँ जैसी है? क्या तुम्हारी फूफियां इनकी फूफियों जैसी हैं? तुम्हारी खालाएं इनकी खालाओं जैसी हैं? तुम्हारे चचा इनके चचा जैसे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खामोश हो गए। अर्ज किया नहीं। फरमाया अगर तेरा नाना इनके नाना जैसा नहीं, तेरा बाबा इनके बाबा जैसा नहीं, तेरी माँ इनकी माँ जैसी नहीं, तेरी नानी इनकी नानी जैसी नहीं है, तो फिर इन शहजादों की बराबरी का ख्याल कभी दिल में न ला। अब ये तो है मकाम और मर्तबा। इन शहजादों की मोहब्बत और मोहब्बत का सीला और अजर मैंने अभी बताया। सरकार ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कैनुका बाजार में सरकार तशरीफ ले गए थे, मैं भी साथ था। वापसी पे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक में अपनी शहजादी के घर तशरीफ लाए, सैयदा कायनात के काशाना अक़दस पे तशरीफ लाए। जब अंदर गए तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपनी शहजादी से, अपने जिगर के टुकड़े से कि मेरे शहजादे कहाँ हैं, मेरे फूल कहाँ हैं, मेरे अस्मात कहाँ हैं? तो जब सरकार ने पूछा दोनों शहजादे दौड़ते हुए आ गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चिमट गए। मेरे आका उन्हें चूम रहे हैं, सूंघ रहे हैं। और फिर सरकार फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह मुझे इनसे प्यार है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं इन शहजादों से। या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तू भी इन्हें महबूब रख। और या अल्लाह सिर्फ इन्हें ही महबूब ना बना, जो जो इनसे मोहब्बत करे उन्हें भी महबूब बना ले, उन्हें भी महबूब बना ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही एक और रिवायत है, किसी ने कहा था कि अबू हुरैरा बाकी तुम्हारी बातें सब अपनी जगह है, लेकिन ये तुम हसनैन करीमैन से आउट ऑफ वे प्यार करते हो, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो फरमाया मैं क्यों ना मोहब्बत करूं। एक सफर में मैं हुजूर के साथ था, काफिला रुका, खैमे लगे, सैयदा कायनात भी थी, हसनैन करीमैन भी नन्ही उम्रों में थे। तो सैयदा कायनात के खैमे से हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश मारने लगी, बेकरार हो गए, दौड़ते हुए आए और खैमे के पास खड़े होकर पूछा बेटी क्या बात है, शहजादे क्यों रो रहे हैं? अर्ज की अब्बा जान प्यास लगी है और इनकी प्यास बुझाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले एक शहजादे को इमाम हसन मुश्तबा को लिया और अपनी वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान उनके दाहने मुबारक में रख दी है। शहजादे चूसते चूसते सो गए हैं। फिर दूसरे शहजादे को लिया, फिर यही अमल किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं उन शहजादों से अपनी जान से भी बढ़कर क्यों ना प्यार करूं। मैं खत्म करता हूं इस बात पर। किसी ने दरिया को कूजे में बंद करते हुए कहा मोहम्मद गुल अस्तो अली बरगे गुल वो वद फातिमा अंदरा बुए गुल चु इतरश बरामद हुसैन व हसन मुअत्तर आजा शुद जमीन व जमन। कहा इन पंज तन पाक की क्या मकाम शान पूछते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलशन तौहीद के महकते हुए फूल हैं और उस फूल की पत्ती मौला अली है, उस पत्ती में खुशबू सैयदा कायनात है और वो खुशबू जब बाहर आती है अपने रोशन पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर किरदार से पूरी कायनात को रोशन कर देती है। उस खुशबू का नाम हुसैन व हसन बनता है। मैं इन्हीं अल्फाज पे खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।